Assalamualaikum viewers and welcome to Kahani Pakistani का brand new episode. मैं हूँ आपकी host आयशा गिलानी. Politics यानी सियासत को लोग generally समझते हैं right wing और left wing की लड़ाई, but politics are much broader than that. It's a theory and practice of influence over people on a civic and individual level, यानी governance की positions को attain और execute करना. और governance है क्या? To organize control over a community of people. Politics रोज़ बदलती रहती हैं. कोई लोग पॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और कईयों को बिल्कुल भी शौक नहीं है. But either way you slice it, they have a direct impact on our lives and our futures. इसीलिए आज के कहानी पाकिस्तानी के एपिसोड के ज़रिए मैं आपको अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम पॉलिटिकल प्लेयर से मिलवाऊंगी. So let's go take a look. जैसे वर्जीनिया में DAV, which is a Democratic Asian Americans of Virginia group, की caucus, यानी a meeting of the legislative body of members of the same political party हुई थी. वहाँ पे मुझे मौका मिला उन लोगों से सवाल पूछने का who are political leaders जो either मुसलमान हैं या मुसलमान और बाकी minorities को support करते हैं. Guys, I'm really excited क्योंकि हम अभी आए हुए हैं at the Democratic Asian Americans of Virginia caucus. यहाँ पे the Asian Americans have gathered who are running for political office, who are making changes in this country, and there's a very special guest here today, Atif Karni, who's a Pakistani and also an American, and he's running for House of Delegates in District 13, though we'll get a chance to meet with him and talk with him later too. Let's see what happens at the event today. Big power players here. I'm now standing with Charnel Herring, who's the chair of the Democratic Party of Virginia and a state delegate. Charnel, you're an inspiration. You're the first woman to be in this seat, is that correct? First African American. मैं पहली सैफाम खातून हूँ जिसने रियासत में पार्टी की सदारत संभाली है. Tell me about your journey and how you reached this. Wow, मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया कि मैं बेघर हो गई. मैंने स्टेट के प्रोग्राम की मदद से कॉलेज की तालीम हासिल की और इसी से मुझे अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का मौका मिला. मेरा रियासत के उन स्मार्ट प्रोग्रामों पर भरोसा है जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की शराकत से चलाए जाते हैं और मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी बरादरी को कुछ वापस दूं. मैं जानती हूं कि इस वक्त क्लासरूम में 16 साल की कई ऐसी लड़कियां होंगी जिनके पास कोई घर नहीं होगा, लेकिन मैं उन्हें तसल्ली देना चाहती हूं कि उनका मुस्तकबिल रोशन हो सकता है. Your story is so inspiring. What gave you the inspiration to go from where you were to where you are now? Well, I mean, certainly I have to say it was my mother. मैं यकीनी तौर पर ये कहूँगी कि मेरी वालिदा ही हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं कॉलेज की तालीम हासिल किए बगैर अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकती. How important do you think it is for African Americans and fellow minorities to break into the political arena? I think it's very important. I think as many different people that can have a seat at the table, and we have a diverse table. मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है. जितने ज़्यादा मुख्तलिफ लोगों को इस अमल का हिस्सा बनने का मौका मिले उतनी ही मुतनव्वो पॉलिसीज़ बनेंगी. तनव्वो से बेहतरी आती है और मुल्क मजबूत होता है. ये बहुत अहम है. मुझे फ़ख्र है कि एशियन अमेरिकन कॉकस मेरी लीडरशिप में एक सियासी कॉकस बन गया है. मैं इस पर फ़ख्र करती हूँ. Under my leadership, I mean, and I'm proud of that because I think that there's more people at the table and that's what's good. Do you have a message for minorities and youth of America? अपनी जिद्दोजहद जारी रखें. ये दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क है जहाँ रहकर आप अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं और मेरा मशवरा यह है कि स्कूल ज़रूर जाएं, पढ़ाई करें, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाएं. अगरचे मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया, लेकिन मुझे ये कहा गया था कि मुझे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए. And thank you so much. Thank you so much. I appreciate it. Thanks a lot. I'm so excited to introduce you to a fellow Muslim American, Congressman Andre Carson. Salaam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. It's great to be here. It's great to have listened to your moving speech. Tell us about your journey. How did you get here? I got my political. मैंने अपना सियासी सफ़र 1984 में शुरू किया था. मैंने सैन फ्रांसिस्को की पार्टी कन्वेंशन में अपनी नामजदगी नहीं ली क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी दादी वहाँ डेलीगेट के तौर पर शरीक थी. मैं एनापोलिस में वापस आया और ख़ुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर किया. मेरी दादी एक सियासी शख्सियत थी. वो उस वक्त कांग्रेस की रुकन थी और मैं कांग्रेस का मेंबर बनने से पहले सिटी काउंसिल का कारकुन बना. मैं एक नौजवान एक्टिविस्ट था. फिर मैंने ये दरियाफ्त किया कि आप सिस्टम को बाहर से भी एजिटेट कर सकते हैं और अंदर से भी. और मैंने ये महसूस किया कि अगर दोनों जानिब फ्रिक्शन मौजूद हो तो आप मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं. There's friction on both sides. You can make positive changes. What impact does your Islamic deen have in your role as congressman?
Well, I think one of the principles मेरा ये ख्याल है कि इस्लाम के उसूलों में ये है कि आपको इंसाफ पसंद और शफाफ होना चाहिए। मैं अपने हल्के के लोगों के मुतालिक जब भी कोई फैसला करता हूँ तो हमेशा इंसाफ और शफाफियत के साथ करता हूँ। मैं नस्ल और मज़हब का पहलू सामने नहीं रखता। मैं ये समझता हूँ कि मुझे अपना वोट उस तरह देना चाहिए जो लोगों पर मुस्बत असरात मुरत्तब करे। You mentioned in your speech that Muslim Americans have a role in the future of America, but non-Muslims do too. Can you talk about that a little bit? well, I think as Americans, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का मुस्तकबिल बनाने में तमाम अमरीकियों का एक किरदार है, चाहे आप यहूदी हों या ईसाई हों या आप मुसलमान हों या सिख और हिंदू। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम जमहूरियत के फ़रोग़ में अपना हिस्से का किरदार अदा करें। हो सकता है कि हम में से कुछ ओहदों के लिए इलेक्शन में हिस्सा लें और दूसरे हो सकता है वोटिंग में जाएं, लेकिन वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे होंगे। हम इस वक्त अपने मुल्क में एक तब्दीली देख रहे हैं और वो ये है कि अब लोगों में मजहबी बुनियाद पर तकसीम में कमी आई है और अब उनका ज़्यादा रुझान मुल्की पॉलिसी, मुलाजमतों की तख्लीक, मुआशी तरक्की और तालीमी निज़ाम को तरक्की देने पर मरकूज़ है। Do you have a message for the viewers of Kahani Pakistani and for the youth? I want to say that I have a special affinity. मैं इस मौके पर यह कहना चाहूँगा कि मेरा जनूबी एशिया से एक खुसूसी लगाव है, ख़ास तौर पर अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से। जब मैंने अपना ओहदा संभाला तो मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि ये साउथ एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी थे जिन्होंने मुझे इस नशिस्त तक पहुँचाने के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल किए। यहाँ के लोग जानते हैं कि क़तई नज़र इसके कि टेलीविज़न पर क्या कुछ दिखाया जा रहा है, हकीकत यह है कि पाकिस्तानी अवाम अमरीकी हुकूमत की दोस्त है और मैंने इस मुल्क में भी यही देखा है कि पाकिस्तानी अमरीकी यहाँ के लोगों को अपने रोज़गार के हुसूल में मदद दे रहे हैं। वो यहाँ सनतें लगा रहे हैं, वो कारोबार चला रहे हैं और ना सिर्फ लोगों को मुलाजमतें दे रहे हैं बल्कि दूसरे लोगों को ये भी पैगाम दे रहे हैं कि वो भी कारोबारी मुंतज़िम बनकर सामने आएँ। मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटीज़ के मुकाबले में सियासी तौर पर ज़्यादा मुतहर्रिक हो रही है, जिसकी इस्लामी दुनिया को ज़रूरत है। ये चीज़ मुझे बहुत मुतासिर करती है और इससे मुसलमानों को इंस्पिरेशन मिल रही है और मुस्तकबिल की सियासत में ज़्यादा मुसलमान नज़र आएंगे। Very inspiring to hear. Thank you for the motivation. Thank you, and keep up the great work. Thank you. Thank you. I'm standing with Miss Penny Gross, the Mason District Supervisor. Penny, what drew you into this event today and what is your connection? इस इवेंट में हमारी नस्ली कम्युनिटीज भी हिस्सा ले रही हैं और वो समाजी हैसियत से इसमें शामिल हैं, जिससे इस इवेंट की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। I heard there's a very large Muslim American community in Annandale as well, and our show is geared towards Pakistanis. What can you say about that? We have so many different faith communities all together. फेयरफैक्स काउंटी में अमूमी तौर पर अरब अमेरिकन और मुसलमान एक बड़ी तादाद में आबाद हैं। हमारे इलाके में उनकी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जिसमें दारुल हिजरा शामिल है, जो 7 कॉर्नर्स के इलाके में है। हमारे इलाके में दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इबादत करने के लिए आते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि फेयरफैक्स काउंटी काम के लिए, खेल के लिए, पढ़ाई के लिए और इबादत करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि हमारी काउंटी में मुख्तलिफ अकाइद से ताल्लुक़ रखने वालों की बहुत सी इबादत गाहें एक साथ मौजूद हैं। हमारे देखने में ये भी आ रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ के मेन स्ट्रीम गिरजा घरों के लिए ह्यूमन सर्विसेज फराहम कर रही है। How important do you think an event like this is for the success in the future of the ethnic community, the Asian community? इस सिलसिले में हमें एक काम ये करना चाहिए कि यहाँ के मकामी इंतखाबात में कामयाब होने वालों में फेयरफैक्स काउंटी का ये चेहरा ज़्यादा दिखाई दे। Thank you for believing in the youth of America and in the minorities of America, which one day will be the majority. Absolutely. Thank you very much. Enjoyed the interview. Thank you. Thank you so much. मैं इसको रीच करने की कोशिश करती हूँ। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। जैसे आपने देखा, डैव कॉकस पे एक पाकिस्तानी कैंडिडेट भी रिप्रेजेंट हो रहे थे जिनका नाम है आतिफ करनी। आतिफ को बहुत सारी सपोर्ट मिल रही है, ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी से पर अमेरिकन कम्युनिटी से भी, एंड विद गुड रीज़न, क्योंकि वो एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं इन द अमेरिकन कम्युनिटी। मैं ये जानना चाहती थी कि उनको कैसा लगता है एक पाकिस्तानी होना और अमेरिकन पॉलिटिकल अरीना में काम करना। आइए चल के सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। ओके, सो हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आतिफ करनी कौन है? ज़रा अपने बचपन के बारे में बताइए। How did you end up where you are today? मैं कराची में पैदा हुआ था। हमारी फैमिली कुछ सालों के लिए दुबई में भी थी, 4 साल के लिए,
जब मैं 10 साल का था हम लोग अमेरिका आए। मैं अपनी अम्मी और अपने 2 छोटे भाइयों सैफ और सफ़ी के साथ यहाँ 1988 में आया था। हम लोग बॉल्टीमोर में सेटल हुए थे। बॉल्टीमोर में मतलब मैं था तकरीबन 18 साल की उम्र तक। उसके बाद मैंने जो है यूनाइटेड स्टेट्स मरीन्स ज्वाइन की और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी मैंने 2000 में ख़त्म की अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़। मैं जब यूनाइटेड स्टेट्स में मरीन्स में था तो मैं इराक़ भी डिप्लॉयड हो चुका हूँ 2003 में। एक्चुअली सबसे पहला वन ऑफ द फर्स्ट मरीन्स था इराक़ में। अब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ प्रिंस विलियम काउंटी पब्लिक स्कूल। तो सियासत क्यों? What inspired you? मैंने सोचा कि मैं सियासत में मतलब आऊँ और वर्जीनिया हाउस ऑफ डेलीगेट्स जिसके लिए मैं खड़ा हुआ उस ऑफिस के लिए, वो बहुत क्रिटिकल पोजीशन है क्योंकि वो पोजीशन डिसाइड करती है कि भाई आप ट्रांसपोर्टेशन फंडिंग कैसे अप्लाई होगी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स होगा, और वो पोजीशन डिसाइड करती है कि कितनी फंडिंग और रिसोर्सेज स्कूलों में जाएगी। आपके तजुर्बात कैसे रहे हैं वर्किंग इन द अमेरिकन पॉलिटिकल अरीना? मेरे तजुर्बात बहुत अच्छे हैं अब तक। मैं 4 महीने से कैंपेनिंग कर रहा हूँ। अल्लाह की मेहरबानी से मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी और हाउस कॉकस और अपनी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी से मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है। आप यूएस मरीन्स में 8 साल के लिए थे। That must have been an amazing experience. ये आपका सफ़र कैसा रहा and how did it change you? मैंने 1996 में यूएस मरीन्स ज्वाइन की थी। मैंने ज्वाइन इसलिए की थी क्योंकि एडवेंचर के लिए। जब सितंबर 11 अटैक्स हुए थे तो उस वक्त मैं डीसी में था। सितंबर 11 की जब स्टोरीज़ मतलब रिवील हुई तो एज अ मुस्लिम अमेरिकन, एज अ मुस्लिम मेल, यू नो, एक मतलब वो परसेप्शन बन गया लोगों के दिमाग में कि मतलब यू नो एज तो वो मैं प्रूव करना चाह रहा था कि अपने आप को खुद, क्योंकि मुझे दूसरे लोगों की परवाह नहीं है कि अपने आप को कि एक कंट्री जहाँ हम लोग मूव हुए और मेरे पेरेंट्स ने बहुत मतलब यू नो सेक्रीफाइसेस किए। उन्होंने अपना होमलैंड पाकिस्तान छोड़ के वो आए। मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं अमेरिकन हूँ, दोनों, और दोनों मुल्क जो है मेरे लिए मतलब बहुत डियर हैं, करीब हैं। मतलब मुझे अपने कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर की बहुत मतलब वैल्यू है, मगर अपने कंट्री और अमेरिका की भी बहुत वैल्यू है। Speaking of which, आपने कोई मुश्किलात फेस किए because you're पाकिस्तानी? पाकिस्तानी अमेरिकन और मुस्लिम अमेरिकन मतलब चैलेंजेस तो हैं हमारी सोसाइटी में, मगर मैंने रियलाइज़ किया कि हम लोग जो हैं एक सोल्यूशन बन सकते हैं। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ लास्ट ईयर मैं बहुत प्राउड था कि नेशनल ऑनर सोसाइटी प्रेसिडेंट और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट दोनों पाकिस्तानी लड़कियाँ थी, फीमेल्स थी। पाकिस्तानी जो हैं वो लीडरशिप रोल ले रहे हैं हमारी जनरेशन में। मैं आज जो खड़ा हो रहा हूँ इस इलेक्शन के लिए, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता था कि जो सेक्रीफाइसेस 40-50 साल से हमारी कम्युनिटी जो है अमेरिका में मतलब कर रही है। और इंशाअल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि एक दिन पाकिस्तानी अमेरिकन विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आप अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी को 10 साल और 20 साल में कहाँ देखते हैं और अपने आप को कहाँ देखते हैं? In 10 or 20 years, in 10 साल, I see myself serving my district of Manassas, Gainesville and Haymarket in the Virginia House of Delegates, but I also want to continue teaching because I love teaching. तो वो मैं नहीं छोड़ना चाहता, मगर I also want to be in the House of Delegates. अपनी community at large, I see that there are going to be more and more Pakistanis who are going to, and more American Muslims who are going to take leadership roles. Or I would like to see more Pakistani teachers. I would like to see more Pakistanis join the government service, the military, or politics. So that is which is already happening. So inshallah in 20 years we can have our first Pakistani American US president. Lastly, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे to the youth, to the viewers of Kahani Pakistani? Stay optimistic. I am just one of thousands of stories, kahanis of Pakistani Americans who are working very hard to make our community proud, to make our country proud. So just stay at it. आपको हमारे लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. Best of luck with your campaign. Thank you very much, Aisha, for having me and Kahani Pakistani. And thank you for the audience for listening.
हेलो, मुझ पे फोकस करो। मैं आपकी होस्ट हूँ, इब्राहिम लिंकन तो नहीं। एक ब्रेक के बाद मिलती हूँ। There are millions upon millions of Muslims in America. इसीलिए it's no surprise that चंद American Muslims ने साथ मिलकर 1994 में एक इदारा कंस्ट्रक्ट किया that would go on to become extremely politically powerful और अमेरिका का सबसे बड़ा Islamic advocacy group। इस इदारे का नाम है CAIR, यानी The Council on American Islamic Relations। CAIR का एनुअल बैंक्वेट हुआ था जिसका नाम था Faith and Freedom। वहाँ पे बहुत सारी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ आई हुई थी जो ना सिर्फ इस्लामिक कम्युनिटीज़ की लीडर्स हैं बल्कि अमेरिकन कम्युनिटीज़ के भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम। I'm now standing with the National Executive Director of CAIR, Mr. Nihad Awad. Assalamu alaikum and thank you for speaking with us. Wa alaikum salam. Thank you for being here. Oh, our pleasure. Ever since I was very young, I've grown up hearing about CAIR because you were the group that stands up for us. Can you tell the viewers of Kahani Pakistani more about what CAIR does in a nutshell? Well, CAIR was created in 1994. ये तंजीम 1994 में कायम की गई थी और इसका सबसे अहम मकसद अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों के सिविल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ था। ये तंजीम इस्लाम के बारे में लोगों की मालूमात में इजाफे, इंसाफ और मुसलमानों और दूसरी कम्युनिटीज़ के दरमियान राब्ते के लिए भी काम करती है। What do you think that Muslims not just in America but the world over can do to combat Islamophobia? I think first and foremost the most effective way to combat Islam. मेरे ख्याल में इस्लामिक फ़ोबिया के मुकाबले में सबसे मौसर तरीका ये है कि हम एक हमसाए की हैसियत से, एक वर्कर की हैसियत से, एक स्टूडेंट की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से, यानी हम जिस हैसियत में भी काम करते हों, दूसरों के सामने इस्लाम की अच्छी मिसाल पेश करें। हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इस्लामी इक़दार पर अमल करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा किरदार और तर्ज़ अमल ही लोगों के सामने हमारे अक़ीदे को पेश करता है। इस सिलसिले में दूसरी अहम चीज़ लोगों को इस्लाम के बारे में बताने के लिए मुहिम चलाना है। हमें लोगों को इस्लाम के बारे में मालूमात फ़राहम करनी चाहिए। इसी तरह हमें सियासत में मुहर्रिक किरदार अदा करना चाहिए, हमें समाजी मसरूफियात में हिस्सा लेना चाहिए, हमें दूसरी तंजीमों और कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर उनके मसाइल के हल के लिए काम करना चाहिए। इसी तरह हमें इस मुल्क की इक़्तिसादियात में दिलचस्पी लेनी चाहिए। हमें यहाँ के तालीमी निज़ाम, इमिग्रेशन सिस्टम की इस्लाहात पर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि इन शोबों में मौजूदा मसाइल यहाँ रहने वाले मुसलमानों के भी मसाइल हैं। हमें अपनी हुकूमत, अपने हमसायों, अपने इलाके की तंजीमों, अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहिए। हमारा अंदाज़ बहुत तामीरी और मस्बत होना चाहिए। हमें इनके साथ पार्टनरशिप कायम करनी चाहिए और हमें अपने लिए और दूसरों के लिए अमन और शफ़क़त और दरगुज़र के जज्बे से काम लेना चाहिए। That's a really important point that I think a lot of us miss. And that's why CAIR is the Council on American Islamic Relations, because we have to remember we're American and we're Muslims and we have to foster both of those relations. Thank you so much. It was an amazing event this evening. I wish CAIR lots of continued success and continue fighting for us. Thank you. इस खातून के बारे में कहा गया है कि she is the American Muslim of the Year. Well, that's what CAIR, the authority on American Muslims, said when they gave her that award for this year. Linda Sarsour, a Palestinian American Muslim है, born and raised in New York. And she's so politically active and at the forefront of many political debates in New York कि White House ने उनको title दिया The Champion of Change. आइए चल के सुनते हैं उनकी कहानी। Assalamu alaikum and congratulations. How do you feel? मैं इसे अपने लिए खुशकिस्मती समझती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसी तंजीम जिसका मैं एहतराम करती हूँ उसने मुझे यह एजाज़ दिया। Tell the viewers of Kahani Pakistani more about what you do. मैं अमेरिका में आबाद मुसलमानों के शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करती हूँ। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करती हूँ जो अमेरिका में आने वाले नए मुस्लिम इमिग्रेंट्स को सोशल सर्विसेज फराहम करती है। मुझे हर रोज़ पता चलता है कि अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसीज़ किस तरह इस कम्युनिटी को मुतासिर कर रही हैं और फिर अपनी कम्युनिटी के साथ काम करके उनके मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश भी करती हूँ। They say that you're a real mover and shaker on the political arena in New York, not just for Muslims, but for all New Yorkers. What drives you? What keeps inspiring you?
मुझे ये तहरीक अपने बच्चों से मिलती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे उस सोसाइटी में रहें जहाँ वो मुसलमान होने पर फख्र कर सकें। मुझे इस चीज़ ने भी तहरीक दी है कि दूसरी कम्युनिटीज़ के वो साथी जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ खड़े होते हैं, मैं भी उनके साथ खड़ी होकर उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करूँ। मसलन अफ्रीकन अमेरिकन, लातीनो और वो इमिग्रेंट्स जिनके पास कानूनी दस्तावेजात नहीं, और ख़वातीन। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे एक अच्छे माहौल में रहें। Thank you so much for speaking with us and congratulations on your award. Thank you. अब मैं आपको मिलवाती हूँ एक इंस्पायरिंग औरत से, मिस तैयबा टेलर. Miss Taylor is a founding editor-in-chief and publisher of Aziza magazine, the award-winning magazine for American Muslim women. Miss Taylor के बारे में कहा गया है कि she's one of the 500 most influential Muslims in the world. आज मैगज़ीन को चलाने के साथ वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज़ में लेक्चर करती हैं, including the International Islamic University इस्लामाबाद में. आइए चल के सुनते हैं उनकी कहानी. Miss Taylor, how do you feel? आज मिलने वाले इस अवार्ड से मेरी हौसला अफजाई हुई है और ये मेरे लिए बहुत इज्जत अफजाई की बात है. इंसान को हमेशा अपने काम के सराहे जाने पर खुशी होती है और मुझे ख़ास तौर पर खुशी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जिसके काम ने अमेरिका में मुसलमानों को मुतासर किया है. What inspires you? What drives you? What gives you that tenacity? I'm extremely motivated. मैं मुसलमान ख़वातीन की शानदार कहानियों में दूसरों को शरीक करना चाहती थी. मुसलमान ख़वातीन से बहुत से गलत तस्वुरात मंसूब हैं कि वो कौन हैं और माशरे और दुनिया को क्या दे सकती हैं. इसलिए मैं इन कहानियों में लोगों को शरीक करना चाहती थी क्योंकि उनके बारे में मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर और बैरूनी दुनिया में बहुत सी गलतफहमियां थीं. Both inside the Muslim community as well as the general community. Do you face any hurdles along the way? Oh, certainly there have been lots of challenges that मुझे बहुत से चैलेंजेस का सामना रहा क्योंकि लोगों को इस बारे में शुकूक व शुबहात थे कि आया कम्युनिटी को ऐसे किसी रसाले की ज़रूरत है भी या नहीं. इसी तरह मुझे माली मुश्किलात भी पेश आईं. ये अमेरिका की मुसलमान ख़वातीन के लिए अपनी किस्म का वाहिद रसाला है. हमारे रसाले का पहला शुमारा अक्टूबर 2000 में शाये हुआ था और तब से ये 13 साल से मुसलसल शाये हो रहा है. चूँकि ये अपने अंदाज का वाहिद रसाला है इसलिए इसके बारे में कई शुकूक व शुबहात थे और हमें अपने आप को साबित करना था. हमने अपनी मैगज़ीन के लिए मार्केट में जगह पैदा की है. We actually have created the market for this magazine. And look at you going strong now. Thank you so much for speaking with us and congratulations on your award. I appreciate it. Thank you. तो कैसा लगा आपको हमारा आज का Muslims in Politics का एपिसोड? मैं जहाँ भी गई, चाहे वो डाव कॉकस पे या केयर एनुअल बैंक्वेट पे, मुझे इतनी खुशी हुई हमारी अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी को एक साथ देखकर. I mean, दुनिया के हर कोने के लोग पहुँचे हुए थे, together for one purpose, faith, deen. I mean, they're making such a big impact on global and American policy that it was a perfect embodiment of together we stand, divided we fall. Well, आज के एपिसोड का वक्त हमारा अब ख़त्म हो चुका है, but please, as usual, हमारे इस Facebook पेज को ज्वाइन करिए and give me your feedback कि मेरी उर्दू कैसी जा रही है. As you know, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ. So, I'm gonna take your leave और हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ. मैं आपकी होस्ट आयशा गिलानी, signing off for कहानी पाकिस्तानी. खुदा हाफ़िज़.